Good afternoon and rather good evening, everyone, and a very warm welcome to all of you on behalf of Sapalta. And very auspicious day today. It is International Women's Day, but I believe that every day should be a Women's Day because without women, there is no universe. We don't exist without women. So every day is a Women's Day. So thank you all, and we have a very young achiever with us, Anshika Avasti today, and thank you, Anshika, for being so spontaneous, has been so prompt in responding to my request to come and talk because I think you are the perfect person. She's just 25 years, but she is so far done very good for herself. She interned with India Today, and now currently she works as a journalist with Financial Express. So Anshika, thank you. Our students are young, they are vibrant, they have the same amount of zeal and enthusiasm as any kid in any part of India is. And we have seen that in ample display in the last one day. So I was completely spellbound with the amount of energy and talent. And if even if I was just 10% of what they are now, when I was in my teenager, I would have done much better in my life. It's over to you now. You can address the students. Hi everyone. Hello. So probably they'll be sending you some messages into the chat, Anshika, because if we unmute everyone, probably there are some background thing and all, but we'll keep on unmuting them time to time. Okay. Assume that. Yeah, I just saw there is a message. Good afternoon. Yeah, happy Women's Day, everyone. First of all. So I'll quickly just take a minute, Anshika. So happy Women's Day to all of you, my dear friends. I'm Himanshu from Safalta, और आज हमारे साथ अंशिका यहाँ पे जुड़ी हुई हैं. And अंशिका एक बहुत young leading journalist हैं Financial Express के साथ. ये इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का बिजनेस न्यूज़पेपर जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, उसका डिजिटल विंग और प्लस न्यूज़पेपर दोनों में ये लिखती हैं. और ये आज आप सब लोगों से मिलने आई हैं और ये बहुत खुश हैं आप सब लोगों से. आप पूरे देश से अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं और ये भी आप इनसे सीख सकते हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब लोग कहीं ना कहीं एक छोटे शहर से आते हैं. सो आई एम वेरी श्योर कि अंशिका की भी एक बहुत एक्साइटिंग जर्नी होगी जो वो आप सब लोगों के साथ शेयर करेंगे आज वीमेंस डे के दिन. तो बढ़िया से सुनिए और दिल खोल के क्वेश्चन पूछेगा. मन में जो सवाल आता है वो चैट में भेजिएगा. हम सब लोग मिल के कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए. सो वेरी हैप्पी वीमेंस डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन. अंशिका, ओवर टू यू. Thank you, sir, for this lovely introduction. First of all, I wasn't expecting this much. I mean, thank you so much for all this. And happy Women's Day to everyone. And welcome everyone, first of all. And I got so many messages on this happy Women's Day. Okay, same to you, everyone. And good afternoon also. Okay, so I'm not able to see everyone. Can you just change your view to the gallery view, right? Okay, now I'm feeling more confident. Yeah. You'll be able to see Geeta, Nilakshi, Priyanka, Ritika, so many women are. Oh wow, this is too good. ये तो बहुत अच्छा लग रहा है. कितनी सारी लड़कियां हैं यहाँ पे. Hi everyone. कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया. अच्छा ऐसे. Okay, we'll speak in language, sign language. Okay. तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि आप में से कोई एक भी ऐसा इंसान है जो ये चाहता है, जर्नलिस्ट बनना चाहता है या कभी भी मीडिया के बारे में कुछ भी सोचा हो? कोई भी एक ऐसा जिसको. अच्छा हाँ, मैंने देखा एक है, प्रतीक्षा राय. ओके, जस्ट वन हैंड आउट ऑफ सो मेनी विमेन. एक हाथ उठाया सिर्फ. अच्छा, 4 पार्टिसिपेंट्स. ओके, ठीक है, 4 लोगों ने हाथ उठाया है. छाया राजपूत also. वाओ. And you can keep on clicking. This is just one of the windows that you're seeing, Anshika. So there are 4 windows. Chandrika, Arya, Pranavi. Yeah. Okay, Shrishti. चलो, अब धीरे धीरे हाथ उठ रहे हैं. Right. Okay. अच्छा, ठीक है. अच्छा, ये तो बताओ कि जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया है वो क्यों नहीं उठाया? क्या दिक्कत है? मतलब ऐसा क्या है, ऐसी क्या चीज है मतलब मीडिया में जो आप लोग को मतलब इस तरीके से कर रही है? Why you guys are not, interested in that field? आप चैट पे मैसेज लिख सकते हैं अंशिका को कि या तो आप अभी Please write it down because I want to have a very friendly conversation आप लोगों के साथ. तो for that I really need to know कि क्या है ऐसा. And by the time they write, अंशिका, आप थोड़ा सा इनको बताएंगे where are you born and brought up, आपने क्या एजुकेशन लिया, कैसे किया? Yeah. Yes sir, of course. Sports journalism.
this is too good. I mean, I never thought myself as a sport journalist. Okay, corruption. Oh my God. Okay, ठीक है. तो मेरा इंट्रोडक्शन तो सर ने दे ही दिया कि मेरा नाम अंशिका है, और आप लोगों के तरीके से मैंने भी कहीं ना कहीं कभी नहीं सोचा था कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगी. We can just keep this conversation on hold for some time. I can start from myself. तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगी. मैं कानपुर से हूँ, यूपी से, उत्तर प्रदेश. तो वहां पे भी क्या ही होता है, ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को टीचर बना दिया जाता है, या तो ज्यादा से ज्यादा क्या ही है, मतलब क्या ही बोलते हैं, पेरेंट्स हो या आपके घर वाले हो, आप लोगों को सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं कि बड़े हो जाओ, 25 साल है, हाँ ठीक है, इतनी पढ़ाई कर ली है, इसके बाद फिर क्या ही करना है, घर बैठिए या शादी कर देते हैं. यही होता है ना, टिपिकल यूपी फैमिलीज, आप लोग भी बहुत जानते होंगे. यही कहा जाता है, मतलब एट द एंड आपका मेन गोल क्या है, टू गेट मैरिड एंड सेटल. ठीक है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा था, बट स्टिल मैंने अपना बीकॉम खत्म किया. बीकॉम भी ऐसे ही मैंने किया, मुझे कोई इतना ज्यादा सीरियसनेस नहीं थी. सीरियसनेस इसलिए भी नहीं थी क्योंकि लगता था ठीक है यार, क्या ही है, हो जाएगा जैसे भी है. उस टाइम इतना पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं. आसपास के लोग भी इतने इंस्पायरिंग नहीं थे कि जिनको देख के लगे, या ऐसे विमेन एग्जाम्पल नहीं थे हमारे आसपास जिनको देख के हम लोग कह सके कि अच्छा हाँ ऐसा करना है वैसा करना है. तो बस जैसे तैसे हो गया. लेकिन बीकॉम के बाद एकदम से आंख खुली, ऐसा लगा कि अब क्या करें. बीकॉम तो ग्रेजुएशन तो निकल गया जैसे तैसे, अब तो कुछ करना है लाइफ में, क्योंकि अगर लाइफ में कुछ करेंगे नहीं, घर पे बैठे रहेंगे, तो मम्मी पापा को आइडिया लगेगा कि अरे यार ये बैठी हुई, अब क्या कर सकते हैं, शादी कर दो या कुछ ऐसा कर दो. अब भाई मुझे तो करनी नहीं थी. मेरा तो हमेशा से इतना तो मुझे पता था कि नहीं, लाइफ में कुछ अच्छा करना है. I mean, इतने सारी आप औरतों को देखते हो कहाँ जा रही हैं, और आज टाइम बहुत चेंज हो गया. आप सब लोग अग्री करते हो इस सब चीज से. अब ये सब शादी या फैमिली, ये सब बहुत लास्ट में ये सब चीजें आती हैं. अभी क्या है, इंडिपेंडेंस, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. अब मुझे तो ये चाहिए थी, तो मुझे कुछ करना था. मैंने सोचा क्या कर सकती हूँ. तो सबसे पहला सवाल जो आप अपने आप से पूछते हो कि हम अच्छे किस चीज में, ऐसा क्या है, अपने आप को देखना, अपने आप को समझना, अपने मेरिट्स को देखना. बहुत से लोग होंगे आपके आसपास जो बाहर निकल रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन आपको ये देखना है कि आप किस चीज में अच्छे हो, और आप किस चीज में, किस फील्ड में अपने आप को बेहतर साबित कर सकते हो और एक स्टैंड आउट कर सकते हो. तो मैंने सोचा मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, राइटिंग एंड कम्युनिकेशन. सबसे पहले तो मुझे ये लगता था जर्नलिज्म और ये मल्टीमीडिया और ये सब एक है, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि नहीं, जर्नलिज्म तो दूसरी चीज है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है, बिल्कुल अलग ही तरीके का फील्ड है जर्नलिज्म. मुझे लगा बस राइटिंग आती है, ठीक है, हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता. राइटिंग के साथ कॉन्टैक्ट्स, कॉन्फिडेंस, सो मेनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड इन दिस फील्ड. तो मैंने सोचा ठीक है, मुझे राइटिंग तो अच्छी खासी आती है, तो मुझे कहीं ना कहीं से एडमिशन तो मिल ही जाएगा. तो मैंने अपना इधर उधर देखा, IIMC में ट्राई किया, इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट में ट्राई किया, और ITMI जो इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट है, जहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है, वहाँ पे मेरा टेस्ट क्वालिफाई हो गया और मैंने वहाँ पे अपना एडमिशन ले लिया. उसके बाद वहाँ पे जो क्लासरूम की लर्निंग थी, मुझे लगा कि बस ठीक है, इतना हो जाएगा, काफी है, हो जाता है. लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है. क्लासरूम की जो लर्निंग होती है वो बहुत डिफरेंट होती है. जब आप ऑन फील्ड उतरते हो तो वो एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होता है. सेम हमारे साथ भी ऐसा हुआ. क्लासरूम में बस ठीक है, पढ़ रहे, 6 महीने की पढ़ाई थी और लगा ठीक है, आ गया है, थोड़ा बहुत असाइनमेंट हो जाता था, टीचर्स वगैरह आते थे, मीडिया से लोग आते थे, लगता था ठीक है, हो गया इंटरेक्शन. लेकिन उसके बाद हम लोग का इंटर्नशिप का पीरियड आया. इंटर्नशिप में बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेंगे. मतलब दिस आई एम टेलिंग फॉर एवरीवन. आप लोग मतलब ऐसा ही होगा, आप लोगों को लाइफ में ऐसे लोग मिलेंगे जो आप लोगों को, कुछ लोग सीरियसली लेंगे, कुछ लोग आपको बताएंगे कि यू डिजर्व एवरीथिंग. कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे कि ऐसा है, आप घर पे बैठे थे ना, वही बेहतर था, यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं थी. अब उस टाइम आपको चूज करना है कि किसकी बात पे यकीन करें. अपने ऊपर करें, क्योंकि इतनी कोशिश करके, इतना एग्जाम क्वालिफाई करके, इतनी पढ़ाई लिखाई करके, इतना पैसा लगा के आप बाहर आए हो, या तो आप बैक ऑफ कर जाओ, या तो अब ये आपका टाइम है. क्योंकि हम लोगों के साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है ना, कॉन्फिडेंस एकदम से टूट जाता है. कोई भी कुछ ऐसा बोल दे कि ऐसा है ना कि आप लोगों को तो ना घर पे बैठना चाहिए था. हम लोग को सबसे ज्यादा चैलेंज भी यही होता है ना कि दूसरों को साबित करना है. हमको पता है कि हम कितना केपेबल है, वी नो ऑल दिस, ठीक है, वी नो आवर पोटेंशियल, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू प्रूव इट टू सो मेनी पीपल टू गेट हियर, राइट. तो उनको प्रूव नहीं अगर हो पा रहा होता है तो दे विल जस्ट स्टार्ट क्वेश्चनिंग एंड दे विल स्टार्ट शोइंग यू योर प्लेस. दैट इससे अच्छा है कि आप अपने घर पे बैठे थे, वही ठीक था. बट आई बिलीव इन माई सेल्फ. आई ऑलवेज न्यू सब
important, this is also important, please know this. किसी भी फील्ड में जाते हो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आप करना क्या चाहते हो, कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो। इसके लिए आपको बहुत, इसके लिए भी रिसर्च करनी पड़ती है। जर्नलिज्म भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। यू कैन बी अ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, यू कैन बी अ एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट, एंड एज समबडी मेंशन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। बट मेरा था कि मुझे बिजनेस जर्नलिस्ट बनना है। मेरा बीकॉम बैकग्राउंड था और मेरे क्लासरूम में सिर्फ 2 लड़कियां, एक मैं थी और एक रूपा, एक दूसरी लड़की थी जिसने बिजनेस जर्नलिज्म चूज किया। मेरा ये चूज करने का इसलिए था क्योंकि जब मुझे लगा कि जब मैं आई हूँ तो मैं कुछ ऐसा सेलेक्ट करूँ ना जिसमें बहुत कम लोग हैं, जहां पे यू कैन प्रूव योरसेल्फ। देयर आर सो मेनी जर्नलिस्ट आउट देयर, बट व्हाई बिजनेस जर्नलिज्म? बिकॉज दैट विल मेक यू स्टैंड आउट, राइट? कितने लोग होते हैं, कितनी फीमेल्स हैं बिजनेस जर्नलिज्म में, कितनी? मेरे लिए इंस्पिरेशन कौन है? मतलब आई हैव टू बी, आई हैव टू स्टैंड आउट, एंड आई डिसाइडेड टू चूज बिजनेस जर्नलिज्म। और उसके बाद उसकी पढ़ाई करी। उसकी पढ़ाई करने के लिए तो आपको न्यूज़पेपर, सबको मतलब लगता था कि कैसे कर पाओगी, कितना टफ है। मैंने कहा कैसे कर पाएंगे, कैसे पता चलेगा? करने के बाद पता चलेगा ना, ऐसे कैसे पता चल जाएगा? लोगों को लगता है नहीं टफ है, बिजनेस जर्नलिज्म करोगे तो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, पर्सनल फाइनेंस, देयर इज गोइंग टू बी सो मेनी सब्जेक्ट्स, कैसे पढ़ोगी? मैंने कहा पढ़ लूंगी, अभी तक पढ़ते आए हैं तो पढ़ लेंगे, कर लेंगे। और अपने ऊपर भी शक होता था स्टार्टिंग में, टू बी ऑनेस्ट, व्हेन आई स्टार्टेड विद दिस एंड आई यूज्ड टू थिंक कि पता नहीं क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। जब इंटर्नशिप करना शुरू किया तो हर एक डिपार्टमेंट में काम किया, लेकिन एट द एंड आई स्टक विद बिजनेस टुडे, जहां पे मैंने अपनी अच्छी से इंटर्नशिप करी। और सबसे अच्छी बात क्या है, मेरा वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, इसलिए क्योंकि मुझे पता था शुरुआत से कि मुझे जाना कहाँ पे। यही अगर मुझे कहीं स्पोर्ट्स में या किसी और उसमें कर देते, नॉर्मल डेस्क में, तो शायद कर भी लेती तो इतना अच्छा, इतना मजा नहीं आता। जब आप कर रहे हो, कोई चीज सोच के निकल रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि वहीं पे आपको कोई पोजीशन मिल जाए। तो वहीं मैंने बिजनेस टुडे में अपना अच्छे से इंटर्नशिप करी, और उस सब में जितने भी इंटर्न्स थे वहां पे, उससे सबसे अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। सबसे अच्छा परफॉर्म कैसे होता है? जब आप बहुत ज्यादा एक्टिव होते हो, आपको बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ता है। जब आप मीडिया इंडस्ट्री में होते हो, लोगों की पता नहीं क्या परसेप्शन है, स्पेशली फीमेल्स की, इंडस्ट्री ऐसी है या वैसी है। आई थिंक अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है बिजनेस जर्नलिज्म के साथ, दैट हैज बीन आउटस्टैंडिंग। आई थिंक जितने लोग मुझे मिले, जितने मेरे कॉन्टैक्ट बिल्ड हुए हैं इतने टाइम में ही, आई थिंक आई वुड नेवर हैव गॉन दैट फार हैड इट नॉट बीन फॉर देम। सो आई थिंक वर्किंग विद बिजनेस टुडे हैज made me a person that I am today. I used to think कि कितना काम कराते हैं, especially for interns, they get so much of work. जब आप internship कर रहे होते हैं ना कहीं पे, you get so much of work and you just start saying कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या मतलब internship करने के लिए आए हैं, यही करने के लिए आए हैं। But the learning that you get, और ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हो। आपको जो काम दिया जा रहा है वो करके घर जाना चाहते हो वापस, or you want to stretch yourself, or you want to show interest कि sir I'm capable of learning this, I'm capable of doing this। आप काम दीजिए, भरोसा करिए, and I'll work on it। आप मुझे बताइए, जैसे this is because ये मैं जो आपको बता रही हूँ, ये मैं करती थी वहां पे। मेरे लिए तो छोटा सा काम दिया हुआ था, ये काम करके चले जाओ। बट व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, अपना काम खत्म करने के बाद मेरी शिफ्ट जब एंड हो जाती थी, आई यूज्ड टू सिट विद सर कि सर आप मुझे बताइए कि कैसे, ये क्या आप मार्केट्स देखते हैं, कैसे क्या करते हैं आप लोगों में से कितने लोग स्टॉक मार्केट की और सबकी नॉलेज है? जस्ट रेज योर हैंड फॉर वंस, आई जस्ट वांट टू गेट एन आइडिया। ओके, 2 4 वाओ, द नंबर इज राइजिंग, ग्रेट। ओके, सो वी हैव 9 पार्टिसिपेंट्स, लेट्स से, ठीक है। And this is amazing. I was not expecting this, because that is the goal, to get our females, get ready to learn all this. Amazing. 11 participants. Okay. My favorite area. This is amazing. Okay. अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, बहुत लोगों को नॉलेज है। It's amazing. So, okay, so let me get started. Can I? Should I start? ठीक है? Okay. So, when I started there with Business Today, I had some idea about market.
because I have learned it in my BCom और commerce का मेरा background है, so I had some idea. And my father is also, stock market trader, so he also used to, do all this trading, ये low high, bear bulls, ये सब करते रहते थे. But I never really paid attention क्योंकि मुझे लगता था ये charts कौन देखेगा? My father used to say कि इसको देखोगे, इसको पढ़ोगे, and I used to say no, I don't want to get into this. But then अब जब प्रोफेशन की बात आई तब लगा कि नहीं, ये सब तो सीखना ही है, बिना सीखे तो कुछ होने वाला नहीं है. तो अपना शिफ्ट खत्म करने के बाद आई यूज्ड टू सिट विद हिम. जो हमारे बॉस थे, मुदित सर थे, जो कि रिसर्च का पूरा वो काम हैंडल करते थे, पूरा मार्केट्स का डेटा एंड एवरीथिंग वो निकालते थे. बैठी, उसके बाद समझा, सीखा, एक्स्ट्रा टाइम दिया, एंड माय ग्राफ यहाँ से यहाँ पहुंच गया. दे जस्ट न्यू, एवरीबडी इन द टीम न्यू कि अंशिका को ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है. तो आप किसी भी काम में अगर आप प्रोएक्टिव हो, अगर आपको पता है कि आप चाहते क्या हो लाइफ में, आपको क्या करना क्या है, आपको पहुंचना कहाँ पे, तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन आसपास, कोई कुछ भी कहे आपको कि नहीं ये फील्ड आपके लिए नहीं है या आपको वो नहीं करना है, जस्ट लिसन टू योरसेल्फ एंड कीप ऑन मूविंग. आई हैड अ वंडरफुल टाइम एट बिजनेस टुडे. आई लर्न सो मेनी थिंग्स जो मेरा आज फाइनेंशियल एक्सप्रेस में काम आता है. दे आर हैप्पी, आई एम हैप्पी प्रोफेशनली, आई एम हैप्पी. क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई थी स्टार्टिंग में, यहाँ पे सर्वाइवल, बाहर आना, नए शहर पे, नए लोगों के साथ, कहाँ पे रहोगे, एक्सपेंसेस का प्रॉब्लम और बाकी सारी चीजें, देयर आर सो मेनी चैलेंजेस. बट व्हेन आई लुक बैक, जब मैं अपना बिग पिक्चर देखती हूँ ना, जैसे कि आप सब लोगों को देखना चाहिए, सब कुछ है लाइफ में, प्रॉब्लम्स हैं और छोटी छोटी चीजें होती रहेंगी हर जगह, बट व्हेन यू विल सी द बिग पिक्चर, then you will see how much you have achieved. Right? I had so many horrible incidents. I'm not denying, I did not have a difficult time. I used to think, what I'm doing here? क्या होगा if I won't get a permanent job over here? मैं क्या करूँगी? I don't want to go back. I never wanted to go back. Some of us come and we just never wanted to go back. Never. So I just decided कि ठीक है, जो भी है जैसा है. And now today when I see myself, I am happy. I'm doing great job. It's not over. I'm happy does not mean that it's over for me. I mean, it's not that I'm settled. I have a long way to go. I have just achieved a single milestone, छोटा सा, which is what I say. So that is it. I mean, there are so many things that still needs to be done. So can you, Anshika, just quickly, can you say one memorable achievement of yours? छोटे से 3 साल के अंदर, what is your breakthrough story you have done, or something worth cherishing? I remember when I was at Financial Express, I was new. I was just mostly I was writing a story on lifestyle and these entertainment beats. And I told, my boss knew that she is a business journalist basically, and she is good at that. So there was this press conference from Nirmala Sitharaman, and there was nobody at that time. So they quickly sent me this story, and उन्होंने मुझे भेजा स्टोरी, और मैंने तुरंत उनको करके एक लंबा सा स्टोरी अच्छा सा वैसा लिख के दे दिया. And they all were like so happy because nobody was there at that time, and I wrote a very good story, and they all appreciated me because I stepped in at that point. So I think for me that was really it was really generous of them to recognize my work at that time. उसके बाद से they decided that they won't give me any entertainment or health related stories. They will only give me good stories, good long form stories. So now I have started working on good long form stories. So this is the advantage that I got. एक moment में, उस moment में I just proved that what I am capable of. और उसके बाद से they started taking me कि नहीं, अब इसको ऐसे normal stories नहीं देना है, इसको just give big stories and let her talk to people because this is what she is capable of doing. So that was really a great show of responsibility, Anshika, I must tell you. sir. और अपने सारे स्टूडेंट्स को बता देता हूँ, निर्मला सीतारमन हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और अंशिका ने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन किया और डिलीवर किया. आई थिंक अच्छे लोग, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, घबरा जाते हैं ऐसी सिचुएशन में और इजी नहीं होता है उन लोगों के लिए करना. सो अगर आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी तो यू कैन सेंड अ वर्चुअल क्लैप और अ थम्स अप फॉर हर.
Yeah, all of you. Oh wow, Shruti, thank you, Pragya, thank you, Priya, Thank you so Priyanka. much. Wow, I can see the yellow screen. Thank you so much. Yeah, Shadan, please let's continue. Yeah, so I think Anshika, thank you so much. आपका जो story सुन के I'm sure जितने भी हमारे audience है, young kids है, they have got massively inspired क्योंकि आपका story भी इनके dreams के साथ बहुत कुछ मिलता जुलता है because they are also from the small cities. And one thing which I like very much what you said is that मतलब वापस जाना तो विकल्प है ही नहीं है. No, not. विकल्प है नहीं मतलब कुछ भी and she also spoke about struggle, discomfort. And all those sort of things which are prevalent in any industry. I will not signal media entertainment industry as a bad industry, but all industry में the situation which a young person goes through is very normal. Yes, sir. But the way you fought it and the way आपने और एक चीज बोला कि मुझे जो काम दिया मैं उसके अलावा उसको complete करके उसका अलावा I used to go and keep pondering or keep asking questions to my boss, trying to learn more. So जो आपको काम मिल रहा है वो आप काम करेंगे, that is like a job. But even you go beyond that thing and then you are building a career. Hello. Hi Neha, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? Hello, hi sir. Sir, I am from Samli district from UP. अरे वाह, आप तो बिल्कुल शुगर केन बेल्ट से बात कर रहे हैं. Yes, sir, near about sugar cane. Yes, sir. जी, आपका सवाल क्या है अंशिका के लिए? वो इंतजार कर रहे हैं. I am सर मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन किया है, तो मुझको लगता है कि एज ए जर्नलिस्ट तो उसमें हमें मतलब कि हमारे लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होगी, तो मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि हाउ मच इज स्कोप इन दिस टू एज ए डिजिटल मार्केटर और एज ए एसईओ एग्जीक्यूटिव. बिल्कुल. हाय नेहा. हाय. ऑफ कोर्स बहुत अपॉर्चुनिटी है डिजिटल मार्केटिंग और हर जगह अब मार्केटिंग ही हो रही है. आई मीन द मोर यू कैन डू दैट द मोर इट्स बेटर. यू नो द लैंडस्केप हैज चेंज्ड ड्रास्टिकली. तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं. लाइक व्हाटएवर यू आर परसुइंग, अभी जो आप ये कर रहे हो अभी यही सब तो चल रहा है. Everybody is becoming, अगर जैसे I am a journalist and I used to be good at writing and speaking, but now I have also I have to learn कि कैसे इसको marketing करनी है, कैसे क्या करना है, इसको कैसे चलाना है, इस story को कैसे क्या करना है. तो there is बहुत अच्छा scope है. तो all the best for that. बहुत सही कह रहे हैं अंशिका. नेहा, जो अंशिका कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो इतनी मेहनत से जो आर्टिकल लिखते हैं उस आर्टिकल को ये फेसबुक पे शेयर करते हैं, लिंक्डइन पे शेयर करते हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटीज में सीड करते हैं, तो ये सारा चीजें डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है आज की तारीख में. और आज आप देखो कि हम लोग कम से कम हमारे देश में 60 से 70 करोड़ लोग हमेशा मोबाइल पे रहते हैं. हर ट्रांजेक्शन वो लोग मोबाइल पे कर रहे हैं, पढ़ाई से लेके शॉपिंग से लेके आपका एवरीथिंग इज ऑन मोबाइल. हर कंपनी आके ग्रो करना चाह रही है सारी ऑडियंसेस के बीच. उनको ग्रो कराने के लिए कौन लगेगा? उनको नेहा लगेगी. बहुत से लोग नहीं कर पाते. ही इज राइट. ही पिक अप द राइट पॉइंट बिकॉज़ नॉट एवरीबॉडी इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट. तो दे लुक फॉर पीपल कि कौन कर सकता है ये काम. तो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू. एज ए हम फ्रेशर है तो हमें तो ऐसे सामने से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है. तो इतने सारे एसएमईज, इतने सारे स्टार्टअप्स यहाँ रोजाना आ रहे हैं, इतने नई कंपनीज रोजाना आ रहे हैं. आज आप लिंक्डइन पे जाइए, आप सर्च करिए, हर आदमी डिजिटल मार्केटर को ढूंढ रहा है. हर आदमी हर कोई मार्केटिंग एक्सपीरियंस की जरूरत है. सर आई एम एक्चुअली वर्क एज ए एसईओ एग्जीक्यूटिव इन ट्रेड इंडिया. देखिए आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं. अपना ब्रांडेड रेट. यस सर आई वांट टू ग्रो माय सेल्फ इन श्योरली. there is a curve with that. लेकिन learning एक curve होता है. आप फ्रेशर होके start कर रहे हो, but the best thing is that you are working right now. You are having experience, and that experience is going to help you. That is only going to make you grow. Your experience, your expertise. Yes ma'am. Very happy to hear from you, Neha. Congratulations. Keep on shining. अच्छा काम करते रहिए. Let's move on to the next one, please. Hi Anshika ma'am. Hi. It was great listening to you and जितने confidence से आपने बोला है, आधा confidence तो मेरा वहीं से lift हो गया. अरे आपको सुन के it's good to talk to a strong woman once in a while. It's just a pleasure. I just wanted to ask कि when it comes to finance
देयर इज ऑलवेज अ स्टीरियोटाइप कि जो वुमेन है दे आर नॉट गुड एट फाइनेंसिंग एंड यू नो हमेशा साइडलाइन कर दिया जाता है। जब भी कोई डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशंस में भी हमारे ओपिनियन को इतना मैटर मतलब वैल्यू नहीं दी जाती है। सो यू एवर हैड एक्सपीरियंस जहाँ पे आपको साइडलाइन कर दिया गया हो कि यू आर अ वुमेन, आप इतना अच्छा नहीं लिख पाओगे, और अगर हुआ तो मतलब कॉन्फिडेंस तो ब्रेक हुआ होगा थोड़ा सा, तो हाउ यू ओवरकेम दैट यू नो दैट थिंग? आई जस्ट रियली वांटेड टू नो दैट. Hello Pragya, it was a wonderful question. At the same time, whatever you said to me, said for me, thank you so much for that. You know, and इससे पहले जैसे मैंने बोला कि आपको यहाँ पे दो तरीके के लोग मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको सीरियसली नहीं लेते हैं, कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको बहुत सीरियसली लेते हैं, और आपको चूज करना है कि आपको किसको सुनना है। करेक्ट. Right? तो मेरे साथ ऐसा हुआ है। I mean, I'm not saying, I'm not denying that I had you know best experience with everyone and every boss just knew my potential कि नहीं इसमें लड़की में बहुत है, अरे नहीं ठीक है करा लो, नहीं, it wasn't like that. तो I had this experience जहाँ पे I was told that go back, this is not a place for you, you can't even write a copy, और इस पर मेरी कोई गलती नहीं थी। I was the way you will tell me, आप जैसा मुझे काम बताओगे उस तरीके से मैं लिख के दूंगी। और जब इंसान जब स्टार्ट करता है, फ्रेशर होता है, तो उसके साथ थोड़ा सा लीनियंट, थोड़ा सा आप उसको स्पेस दे सकते हो सीखने का। तो कुछ लोग बिल्कुल नहीं देते, कुछ लोग आपको बोलते हैं आराम से, जैसे मेरे साथ यही हुआ जहाँ पे इस तरीके का मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, जहाँ पे लोगों ने मुझसे बोल दिया कि जस्ट गो बैक। आई वाज शैटर्ड, आई फेल्ट सो बैड, और मैं किससे कंप्लेन करती, किससे क्या करती, बट आई पिक माई सेल्फ अप, आई लेफ्ट दैट प्लेस उस टाइम के लिए। बट देन आई न्यू दैट वट एवर ही सेड वो हर्टफुल था, बट आई न्यू दैट हु इज ही टू टेल मी अबाउट दिस, हाउ कैन ही, एक बार में कैसे उन्होंने पूरा एग्जामिन करके रख दिया दैट आई डोंट बिलोंग हियर। आई मीन आई हैव जस्ट स्टार्टेड, लेट मी सी वेयर आई गो, लेट मी जस्ट गिव दिस सम टाइम। जिस दिन आई विल नो ना कि आई डोंट बिलोंग हियर, आई विल नो इट माई सेल्फ एंड आई विल लीव द इंडस्ट्री, बट लेट मी डू दैट। उसके बाद आई मेट सम वेरी गुड पीपल, आई मेट सम वेरी गुड पावरफुल फीमेल्स वही इंडस्ट्री में। उन्होंने बोला चलो चलो हो गया, कुछ नहीं, चलो get up, और ये करोगी तुम, and they started supporting me. So I'm not denying, I had a wonderful support system around me, female system जिन्होंने मुझे support किया। They just told me what are you saying, कौन ऐसी बातें करता है, प्लीज ये सब अपनी यूपी की और ये सब बातें leave all this behind, just come here, बात सुनो इधर, ये जो तुम सोच रही हो ना ये सब बहुत फियर है जो हम लोगों के अंदर डाला जाता है, और कॉन्फिडेंस तोड़ना और ये सब बहुत होगा इंडस्ट्री में, बट यू हैव टू नो व्हाई यू हैव कम हियर, यहाँ से इतनी दूर आए क्यों हो, बहुत लोग ऐसे मिलेंगे, तो यू नीड दैट काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम। आई हैड दैट। तो यू विल मीट नेगेटिव पीपल, बट एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो गेट टू मीट पॉजिटिव पीपल। तो जस्ट लिसन टू दोस एंड लिसन टू योर इंस्टिंक्ट्स, यू नो दैट यू हैव कम हियर एंड इट्स, लेट देम से जो भी है जैसा भी है कहने दो, मैं यहाँ पे हूँ। एट द सेम पर्सन जहाँ पे जिस टीम में मेरे साथ ऐसा हुआ था, वहां से लोग आते हैं कि माय गॉड अंशिका यू डिड द राइट थिंग, हम लोग के साथ भी ऐसा होता है, बट आज तुमको देख के ऐसा इतना अच्छा लगता है कि मतलब तुम यहीं पे हो इस इंडस्ट्री में, यू आर डूइंग सो वेल। तो द सेम पीपल हु विल डाउट यू ना, ये कोट सिर्फ नहीं कर रही हूँ मैं क्योंकि मैंने कहीं पे कोट पढ़ लिया, दिस हैज हैपेंड, दिस आई हैव एक्सपीरियंस्ड। द सेम पीपल हु सेड कि अंशिका यू आर नॉट अ सीरियस पर्सन, दे हैव कम टू मी एंड सेड कि अंशिका आई मीन माय माइंड is really blown, I mean you are doing this, I said yes I am doing this, and I humbly said thank you so much, just be humble, keep working, बस humble रहो, मेहनत से काम करो बस, और अच्छे लोग भी जरूर मिलेंगे, अगर ऐसे लोग मिले हैं ना जो पॉइंट आउट करते हैं, अच्छे लोग भी जरूर मिलेंगे। ग्रेट, थैंक यू सो मच। इस हिम्मत को संभाल के रखना है प्रज्ञा, जो अभी अंशिका ने बताया है, और जी गलत प्रूव करना है। ओके जी, so I think we are good here, Shadan. Yeah. So thank you Anshika once again. Thanks. It was a very powerful, awe-inspiring session. बहुत धन्यवाद. So we'll move forward. Himanshu. Yeah. So basically thank you so much. We'll continue this and we'll remain in touch. And I've just made a LinkedIn post, so I've taken a liberty to tag you there. So, Okay. Yeah. I will post. Okay. Thank you so much, girls, and happy Women's Day. Be powerful, just believe in yourself. कोई भी कुछ भी कहे छोड़ो, भूल जाओ, believe in yourself, and you have wonderful people like Shajan and Himanshu sir. I mean they are very supportive. You all will fly. बहुत अच्छा होगा. God bless you all.